Jai Hind, my dear students. So today we are going to start with English Alive course book. So from this book, I am going to start with the new chapter, chapter number 7. You can see here, Tyltyl's Adventure. In this story, we will read about a story of a sea turtle. यस जो सी में वो जो सी में आपके कछुए रहते हैं उनकी स्टोरी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज. A mother turtle laid some egg on the seashore. The eggs hatched and baby turtles crawled out. Among them was Tyltyl, the little baby turtle. He led his brothers and sisters towards the sea. Read on to know what happened to the baby turtles. So here there was a turtle, mother turtle. She gave eggs at the seashore. And what happens there? And the egg got cracked and hatched the babies turtles. They came out of it. And among them one baby was there whose name was Turtles, the little baby turtle. And what he used to do, he used to move ahead, and among like when he moved ahead, he used to call all his brothers and sister to follow him towards the sea. It was a bright and sunny day. The sunbeam fell on the seashore. They touched the dancing waves. They fell on the fishermen taking out their boats. They fell on the sand heaped by the rock. Now, the writer, what he's saying here, that the day was bright, and sunbeam means the rays of the sun. It was very bright that was falling on the seashore. You know that seashore पे क्या होता है, जो रेत होती है वो क्या होती है, बहुत गर्म हो जाती है. एंड जो पानी आपको सी में बह रहा था वो क्या कर रहा था, इट वॉज लाइक दैट दे वर डांसिंग एंड दे आर टचिंग द सैंड that were lying over there. And fishermen taking out their boats, and because of the bright rays of the sun, fishermen, they were coming out of the sea. They fell on the sand heap by the rock. Now heap means an untidy pile, means एक के ऊपर एक रखा हुआ rocks पे. The sunbeam made the sand very warm. Suddenly something moved and wriggled under it. एंड जो सन की रेज होती है वो क्या हुआ, वो सैंड को गर्म कर देती है, वार्म कर देती है. और तभी wriggled means moved, twisting, and suddenly moved and wriggled under it. और जब उसमें क्या दिखा कि जो रेत है उसके अंदर कुछ मूव कर रहा है. Yes, a tiny creature with a soft shell on his back crawled out of the sand. It was Tyltyl, the baby sea turtle. और क्या देखा, tiny means very small. Very small means मतलब जो very small कौन है, जो टर्टाइल है उसका बेबी है, कि उसका जो सेल है, जो उसके ऊपर की जो सेल होती है वो बहुत क्या थी, सॉफ्ट थी, क्योंकि वो बेबी था. एंड वो मूव करता है. एंड बाद में क्या दिखता है कि वो कौन है, बेबी सी बेबी है, किस चीज़ का, टर्टाइल का. टर्टाइल वॉज टॉप्सीज बेबी. और जो ये बेबी था, ये टर्टाइल था, वो किसका बेबी था, टॉप्सी का बेबी था. द नेम ऑफ द मदर टर्टाइल इज टॉप्सी. टॉप्सी लिव्ड इन द सी. और जो टॉप्सी है वो कहाँ रहती है, सी में रहती है. बट द सी इज़ अ रेस्टलेस प्लेस टू लिव इन. लेकिन क्या बताया गया, जो सी है वो कभी रेस्ट नहीं करती है. क्यों, क्योंकि जो उसका वाटर होता है वो मूव करता रहता है. दे कीप ऑन मूविंग. So when it was time for her to lay eggs, she swam back to the shore. She crawled along the sand looking for a quiet place till she found a lovely corner by the rock. जब उसको एग देने का उसका टाइम आया तो पता था कि जो सी है उसकी वाटर कभी रुकती नहीं है, इट्स कीप ऑन मूविंग. तो वो किसके पास आ गई, वो सी के किनारे पे आई और उसने एक सेफ कॉर्नर ढूंढा जहाँ पे वो अपने एग दे सके. टॉप्सी लेट्स हर एग बरीड देम इन द सैंड. और जो टॉप्सी है उसने अपने एग दिए और उसने कहाँ उन्हें दफना दिया, छुपा दिया. बट मीन छुपाना यहाँ पे, उसने कहाँ छुपा दिया, रेत के अंदर, सैंड के अंदर. एंड वापस वो कहाँ चली गई, सी में. द सन वार्म द सैंड एंड केप्ट द एग्स वार्म अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बेबी टर्टल्स टू कम आउट. एंड तब तक किसने उसका ख्याल रखा, जो सन की रेज हैं उसने सैंड को गर्म रखा, जिससे कि जो बेबी थे, जो एग में जो बेबी थे वो बाहर आ सके, जब तक मदर टर्टाइल सी से वापस आती. द एग्स क्रैक्ड एंड द टर्टाइल बेबीज क्रॉल्ड आउट ऑफ द सैंड. और एग जब वो डेवलप हो गया एग के अंदर तो वो एग क्या हो गया, फूट गए और उससे बेबी बाहर आ गए. टर्टाइल
craned his tiny neck and looked about him. Bright sunlight shone into his eyes, making him feel dizzy for a moment. He heard that the roar of the sea and the sound of waves breaking over the sand. The sea was calling him. ठीक है, क्रेन मीन्स स्ट्रेच्ड आउट. यस, जो बेबी थे उसने क्या किया, जो छोटे छोटे बेबी थे टर्टल के, वो अपने नेक को ऊंचा करके रेस करके देख रहे थे. ब्राइट सन शॉन ऑन इनटू हिज आइज मेकिंग फील, और जो सन की रेस थी वो ऐसे उसको फील करवा रहे थे बच्चों को जैसे उन्हें नींद आ रही हो. डेजी मीन्स अ फीलिंग दैट इज एवरीथिंग इज टर्निंग अराउंड, जैसे कि सारी चीज़ें क्या लग रही है, सोई सोई सी. ही हर्ड द रोर ऑफ द सी, और उन्होंने क्या सुना कि जो साउंड है सी की वो आवाज़ लगा रही है, और उसको ऐसा फील हुआ कि जो सी में जो वाटर है वो उसको बुला रहा है. ठीक है. 5 more baby turtles crawled out of the sand. और कितने बेबी निकले सैंड से, 5 और निकले. They were his brother and sister. जो बेबी टर्टल था वो उसके ब्रदर एंड सिस्टर थे. हेलो दे सेड लुकिंग एट टर्टाइल. एंड जो भी बच्चे वो 5 बेबीज हुए उन्होंने किसको हेलो बोला, टर्टाइल को. हेलो रिप्लाइड टर्टाइल, कम फॉलो मी, वी डोंट हैव मच टाइम. और उसने क्या बोला टर्टाइल ने कि हेलो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे फॉलो करो. नाउ कहाँ जा रहे थे वो सब सी के तरफ जा रहे थे. वी आर गोइंग आस्ट वन ऑफ द, वेयर वी आर गोइंग आस्ट. अब जो 5 थे उनमें से एक बेबी ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं. टू द सी ऑफ कोर्स सेड टर्टाइल. और जो टर्टाइल था उसने क्या बोला, ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है, हम जा रहे हैं सी की तरफ. टर्टाइल लेट द लिटिल ग्रुप अक्रॉस द सैंड. और जो टर्टाइल था उसने वो 5-6 जो बेबी थे टर्टाइल के उनको लेकर सी की तरफ मूव करने लगा. A few more turtle babies joined them. Topsy had laid nearly 50 eggs. So here you need to learn कितने eggs दिए थे टॉप्सी ने, 50 eggs दिए थे. और जितने भी बेबी निकले वो सब किसको फॉलो करने लगे, जो लिटिल बेबी था, जो सी टर्टल था उसको फॉलो करने लगे. बट सम ऑफ देम डिड नॉट गेट इनफ वार्मथ फ्रॉम द सैंड. लेकिन कुछ एग ऐसे थे जिनको वार्मथ नहीं मिले थे, जिसकी वजह से वो क्या हुए, डेवलप नहीं हुए. सो दे वर नॉट रेडी टू कम आउट. इसलिए कुछ एग ऐसे थे जिसमें से बेबी अभी डेवलप नहीं हुए थे, इसलिए वो बाहर नहीं आए. सम अदर हैड बीन डग अप बाय अ नॉटी बॉय हु टुक देम होम. और कुछ डग अप मीन्स खोदना, और जो सी टर्टल था उसने क्या कर दिया था, नॉटी था, उसने खोद दिया था, जिसकी वजह से वो नहीं निकल पाए. कीप बाय द रॉक वार्म टर्टल, लुक एट दोज बिग सी वर्ड्स फ्लाइंग अबव, दे लुक वेरी बैड, आई होप दे डोंट अटैक अस. जो सी टर्टल है वो अपने ब्रदर एंड सिस्टर को क्या बोलता है यहाँ पे, कीप बाय द रॉक मीन्स रॉक के किनारे रहो. क्यों, क्योंकि जब वो सी की तरफ जाते हैं तो जो बिग सी वर्ड्स होती है, जो हंट करती है, जो हंटिंग करती है, वो देखता है और वो उनको वार्न करता है कि बिल्कुल रॉक के किनारे रहो, क्योंकि ये लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेकार हैं और यहाँ पे कभी भी अटैक कर सकते हैं. बिफोर टर्टल कुड फिनिश स्पीकिंग वन ऑफ द वर्ड स्विफ्ट डाउन ऑन them. Get inside your shell, quick, cried Tyltyl. And it was too late. A seagull grabbed one of them and flew away. They felt very sad. Now, क्या हुआ, जब तक किसी टर्टाइल अपनी बात फिनिश करता तब तक ही एक सी वर्ड आया, उसने अपने So till the time this baby sea turtle was able to finish his talk, so meanwhile what happened? This seagull means the hunting bird that was flying above the sea and above them also. That bird took one of the turtle and flew away. एक जो टर्टाइल था उसने अपने चोंच में लिया और उड़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, दे फेल्ट वेरी सैड. नाउ ऑल अदर टर्टाइल्स दे बिकेम वेरी सैड. जस्ट बी केयरफुल ऑल ऑफ यू, सेड टर्टाइल. हाउ फार इज द सी, आस्क्ड वन ऑफ हिज ब्रदर. आई एम हंग्री and thirsty too, said another. There are some tiny worms here, said Tyltyl, sniffing inside a sand heap, and there's water in the puddle. Now, what is there that now when they were going towards the sea, so the brothers and sister of the sea turtle, they started asking him question. Like one asked him that how, kitna dur hai sea. Then second one asked him that he was hungry and thirsty, कि उसे भूख भी लगी है और वो प्यासा भी है. So they were asking questions. So when he asked this question, the sea turtle, he replied him that
There are tiny worms. Means tiny means as I told you, it's very small. That tiny worms are there and sniffing. Sniffing means smelling. And where they are smelling, they're smelling inside a sand heap. Means एक के ऊपर एक. And there's water in that puddle means a place where waters are collected. So he was giving them option that from where they can get the food and water. How far is the sea? Asked a sister of Tyltyl. Now again the sister. The female gender of Tyltyl means his sister again asked this sea Tyltyl that how far is the sea? Not too far, I guess, replied Tidal. He himself, not knowing that how far it is, he himself don't know that what is the distance left. So he said that कि अब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दूर और है. आई होप देर आर नो मोर किलर वर्ड्स सेट द यंगेस्ट ऑफ द ग्रुप. एंड जो ग्रुप में जितने भी टर्टल थे उसमें जो सबसे छोटा था उसने बोला कि मैं मुझे ये लगता है, मैं अब ये होप करता हूँ कि जो और किलर कौन थे? सी बर्ड्स, हंटिंग बर्ड्स, कि अब नहीं है जो हम पे हमला करेंगे, हम पे अटैक करेंगे. दे क्रॉल्ड अलॉन्ग स्लोली. Crawled means they were walking very slowly, they were moving very slowly. A group of seagulls tried to get at them once more, but this time they quickly got inside their shell. And when they were moving ahead, when they were moving forward, so meanwhile, what happens? Once again, the birds they tried to attack them, but the moment the birds try to attack them, they hide themselves inside their cell. कि जैसे ही बर्ड्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की वैसे ही वो कहाँ छुप गए? अपने सेल के अंदर. एंड द साउंड ऑफ द सी ग्रो लाउडर. द सैंड बीनीथ देयर फीट फेल्ट wetter. They were in the water now, but they were not fully safe yet. There came a shoal of big fish looking at them hungrily. Hide under those shells, quick, cried Tata. Now what happened? The sea, the voice of the water, it grew more louder than before, and the sand beneath their feet felt bitter. Means it is talking. जो sand है वो क्या हो रहा है? अंदर की साइड जा रहा है. Yes, and the water in the they were in the water. Now where they are in the water, but still they were not safe. They came when they were inside the sea. Now to whom they met? They met a group of big fish. वो किससे मिले जब सी में पानी में थे? बिग फिश का एक ग्रुप मिला उन्हें जो कि उनके ऊपर नज़र गड़ाए बैठा होता. क्यों? क्योंकि वो सारे क्या थे? फिश जो थे वो भूखे थे. हाइड अंडर दो शेल्स क्विक. और जैसे ही सी टर्टल ने देखा उसने अपने सारे ब्रदर सिस्टर को क्या एडवाइस किया कि वो जल्दी से कहाँ छुप जाए? अपने सेल्स में. दे डग्ड अंडर अ पाइल ऑफ एम्प्टी सेल्स जस्ट इन टाइम. टग मीन्स बेंड डाउन. जैसे उसने बोला वो सारे जितने टर्टल्स थे वो कहाँ छुप गए? अपने सेल्स में. टर्टल लुक्ड अराउंड एंग्शियसली. एंग्शियसली मीन्स वरिड मैनर. और जो टर्टल था वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गया, उसे चिंता होने लगे. लाइफ सीम्स टू बी हार्ड सेड वन ऑफ हिज ब्रदर. इट सीम्स टू मी दैट वी आर ऑलवेज हाइडिंग फ्रॉम किलर्स ऑफ वन काइंड और अनदर. अब उनमें से एक कछुए ने क्या बोला कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो मुझे हार्ड लग रही है, कठिन लग रही है. क्यों? क्योंकि हमें बार बार किन से बचना पड़ रहा है? हंटर्स से, किलर्स से, जो हमें मारना चाहते हैं. और वो मारने वाला कौन था? हंटिंग बर्ड्स, सी गर्ल्स, सी बर्ड्स. Life is an adventure, silly, said Tatil. We all get used to it in time and enjoy it too. Adventure means that unusual, exciting एंड डेंजरस एक्टिविटी. वो एक्टिविटी जो डेंजरस तो होती है बट उसको करके हमें खुशी मिलती है. सो दिस सी टर्टल व्हाट ही एडवाइज्ड हिम दैट लाइफ इज़ नॉट अ हार्ड बट इट इज़ अ एडवेंचर बिकॉज when we will get used to it, it will be easier for us and we will definitely enjoy. The big fish were all gone after a while. और जो बड़ी वाली फिशेस थे वो सारे वहाँ से चले गए. The water looked blue. और पानी कैसे दिखने लगा? Blue. मतलब the water of the sea was very clean. It felt as soft as silk. यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि जो वो
था, उन्हें कैसा लग रहा था कि वो पानी में किस तरीके हैं, सॉफ्ट, जैसे सिल्क सॉफ्ट होता है वैसे तुलना की है। साउंड ऑफ वेव्स प्रोड्यूस म्यूजिक, अब जो वाटर की साउंड थी वो उनको किस तरीके से लग रही है, जैसे म्यूजिक बज रहा हो। ऑल क्लियर नाउ सेड टर्टाइल इन अ हैप्पी वॉइस। एंड ये सारी चीज़ें जब उसने अपने ब्रदर एंड सिस्टर को समझाया तो उसने बोला अब सबको समझ आया, वी हैव रीच्ड होम नाउ। What he said at the end, the sea turtle, that now they are at their home. And what was their home? Where was their home? Their home was inside the sea. So at the end he told them that now we have reached in our home, कि वो अपने घर पहुंच गया। उनका घर क्या है, सी, पानी, जहाँ पे वो सारे फिश से छुपे थे पहले, और उसके थोड़ी देर बाद फिश वहाँ से सारी गायब हो गई थी। थैंक यू।